شیعہ ہمارے ناظرین نے کیا جواب دیے، کیا علمی انہوں نے جو ہیں شاہپارے وہ یہاں پہ نچھاور کیے ہیں. اگر کوئی علمی بات ہوئی جس پر بات کی جا سکتی ہوئی تو آج ہم اس کا ہی جواب دیں گے. تو سب سے پہلا کمنٹ ہمارے پاس موجود ہے غلام قادر صاحب کا. غلام قادر صاحب کہتے ہیں جی ماشاءاللہ مولانا صاحب آپ نے بہت ہی زبردست گفتگو کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ منکرین قرآن کو، صحابہ اور اہل بیت کے گستاخوں کو اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے، آمین. اور یہود و نصارہ اور منافقین کے شر سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ تو غلام قادر صاحب کا کمنٹ تھا جنہوں نے اپنے دعاؤں کا، نیک تمنا اور خواہشات کا اظہار کیا. ہم غلام قادر صاحب آپ کے بڑے مشکور ہیں. آپ حضرات سے یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ چونکہ ہم نے باطل کے خلاف، قرآن اور اہل بیت اور صحابہ کے دشمنوں کے خلاف کام کرنا ہوتا ہے، تو آپ کی ہمیں یہی سپورٹ حاصل ہو سکتی ہے کہ آپ کے سامنے جو ویڈیو آتی ہے آپ اس کو شیئر کیجیے، تاکہ سادہ لوگ مسلمان جن کو ان کے فریب کا نہیں پتہ، مکر کا نہیں پتہ، جو کسی کو بھی جو بھی اپنے منہ سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں اس کو مسلمان مان لیتے ہیں، ان کے عقائد کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو یہ عقائد ہم نے بتانے ہیں، کھرے کھوٹے کو ہم نے الگ کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیجیے. آپ ان ویڈیوز کو ہماری جو بھی آتی ہیں ان کو شیئر کیا کریں اور کوشش کریں کہ چینلز کو جو ہمارے ہیں وہ سبسکرائب کیا کریں، تاکہ ہمارا یہ مشن، ہمارا نظریہ اور یہ جو حق ہے، یہ حق کی آواز دور تک پہنچ سکے. دوسرا کمنٹس کر رہے ہیں جناب احسان زادہ صاحب. احسان زادہ صاحب فرماتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوب، کیونکہ رافضیت تیزی سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. جناب ایسا ہی ہے، رافضی اصل میں وہ نام ہی دجل اور فریب کا ہے، اور فریب میں انسان آ جاتا ہے، مکر میں، چال میں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اس انداز میں بولو کہ وہ اگلے کو سچ لگے. تو یہ اس انداز میں جھوٹ کو بولتے ہیں کہ اگلا سادہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہی سچ ہے، تو وہ ان کے مکر و فریب میں آ جاتا ہے. اور پھر یہ جو قرآن اور اہل بیت کا جو لالی پاپ دیتے ہیں، میرے خیال میری سمجھ کے مطابق کہ ان کے پاس قرآن اور اہل بیت نہیں، جیسا میں نے شروع میں کہا، یہ صرف ان کا نام استعمال کر کے خود ان کے نام پہ کھاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مل کے کوشش کرنی ہوگی. تو اسی لیے آپ ہماری آواز میں آواز بنیں اور ویڈیوز کو شیئر کیا کریں. آگے جناب محمد عباس صاحب کہتے ہیں جی اکیلے بات کرنا کافی آسان ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے درست کہا. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اکیلے بیٹھ کے ویڈیوز بنا لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، تو یہ آسان ہے. ہم نے یقیناً آپ جن کو چیمپئن سمجھتے ہیں، جنہوں نے قرآن، صحابہ، اہل بیت کی واضح طور پر تکفیر کی اور چیلنج کیے لوگوں کو کہ آؤ ہمارے ساتھ بات کرو، ہم نے آپ کے ان چیمپئنز کو بھی دیکھا ہوا ہے اور ہم نے براہ راست آن لائن سامنے جا کر ان کے ساتھ بات کی. گھنٹہ 2 گھنٹے بات ہوئی. آخر میں وہ بھاگ جانے پہ انہوں نے عافیت سمجھی. انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کریم کی تحریف کے قائل ہیں اور اس قرآن کو نہیں مانتے. اور وہ پھر اصلی قرآن جس کا وہ دعویٰ کر رہے تھے، اصلی قرآن پر اپنا ایمان بھی ثابت نہیں کر سکے اور وہ اصلی قرآن دکھا بھی نہیں سکے. اور ہم نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں، رافضیت کو اسلام اور مسلمان ثابت کریں، تو وہ بھی نہیں کر سکے. پھر اسی طرح اور مختلف موضوعات پہ ہمارے 5 مناظرے حسن العیاری کے ساتھ ہوئے. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ آپ کے مذہب میں جس کو آپ زیادہ بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں شاید کوئی اور نہیں ہوگا. تو وہ 5 دفعہ بھاگ چکا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے کوئی اور ہے، تو آپ لائیے. انشاءاللہ اکیلے نہیں، ہم اس کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کریں گے اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھ لیں گے کہ نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلتا ہے. آگے محمد عباس صاحب دوسرا کمنٹ کرتے ہیں، بعد از رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا تھا، تعصب سے ہٹ کر یہ بھی بتائیں. اچھا جی، آپ نے کہا تعصب سے ہٹ کر بتائیں کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا تھا. جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے لگے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی رسول پر حضرت ابوبکر کو کھڑا کیا تھا اور کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، میرے مصلی کو سنبھال لے، نماز پڑھائے. حضرت ابوبکر نماز پڑھانے کے لیے مصلی رسول پر آگے ہو گئے، کھڑے ہوئے، اور حضرت علی، حضرت عباس، حضرت حسن، حسین، تمام آل بیت اطہار صحابہ کرام نے ان کی امامت پر اجماع کر لیا تھا. اور پھر آگے چل کے انہی سارے کے سارے صحابہ اور اہل بیت نے حضور علیہ السلام کے جانشین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی تھی اور اس کی حکمرانی خلافت تسلیم کر لی تھی. یہی ہوا تھا اور اسی طرح سے چلا تھا. اور جو فیصلے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے زمانہ خلافت میں کیے تھے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر قائم رہ کر یہ بتایا کہ ابو بکر نے جو فیصلے کیے ہیں وہ بالکل درست ہیں. اگر وہ درست نہ ہوتے تو میں اپنی خلافت میں ان فیصلوں کو بدل دیتا، چاہے وہ باغ فتح ہو، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ لے لیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا حضرت علی نے ان کو بدلا نہیں. یہ ضمانت ہے اس بات کی، یہ تصدیق ہے اس بات کی کہ حضرت ابو بکر کے تمام فیصلے درست تھے. آگے انہوں نے نام تو نہیں لکھا لیکن کہا اولاد زہرا سے پیار کرنا ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور تم مولوی کیا پتہ محمد کی اولاد سے پیار کیسے کیا جاتا ہے. بالکل آپ نے درست کہا کہ ہمیں نہیں پتا اور آپ کو پتا ہے. جن کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، جو اللہ کے رسول انبیاء سے
इन अहले बैत को बढ़ाते हैं और बढ़ाने का अंदाज क्या है। आप अपनी किताबें उठाएं, कभी आपको पता चले कि आप अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते हैं। आपकी किताब के अंदर मौजूद है मन तमत्ता मुतअतम मर्रा वाहिदा दर्जतुहु कदर्जतिल हसन, एक दफा मुता करो, जिना करो तो हजरत हसन के दर्जे को पहुंचता है। नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह, ये अहले बैत अतहार से मोहब्बत है तुम्हारी। मन तमत्ता मुतअतन मर्रतैन दर्जतुहु कदर्जतिल हुसैन, दो दफा मुता करो तो दर्जा हजरत हुसैन के बराबर पहुंचता है। ये तुम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इज्जत और एहतराम कर रहे हो। मन तमत्ता मुतअतन सलासा मर्रात दर्जतुहु कदर्जतिल अली, तीन दफा मुता करो तो अली के दर्जे पर पहुंचता है। मन तमत्ता मुतअतन अरबा मर्रात दर्जतुहु कदर्जतिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है तुम्हारी अहले बैत की जो तुम तारीफ और ताज़ीम करते हो। हम खूब जानते हैं, हम हमारे मुंह ना खुलवाओ, जब हमने तुम्हारी ये पर्दे चाक किए तो कुछ बाकी नहीं बचेगा। हम जो कहते हैं ना कि शिया राफिजी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम से खारिज है और वो कुफर करता है, काफिर है, तो वो हम किसी रेत की दीवार पर नहीं, मजबूत चट्टान पर खड़े होकर कहते हैं। जब हमने वो बयान करना शुरू कर दिया तो तुम्हें ये बातें ये कहना जो है वो बहुत महंगा पड़ जाएगा कि हम अहले बैत को मानने वाले हैं और हम अहले बैत से प्यार करते हैं। जो तुम प्यार करते हो ना, उनकी गुस्ताखियां, उनकी तौहीन करके कि जनाब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, मैं आगे चल के बात करूंगा, वो शायद आप में से किसी का कमेंट भी है, तो मैं चाहता हूं कि मुख्तसर बात हो। आप कहते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पर हजरत उमर ने आकर दरवाजा जला दिया और हजरत फातिमा बाहर निकली। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप नाउज़ुबिल्लाह इस अंदाज में पेश करते हैं कि वो बहादुर, नडर, शेर, शुजा नहीं थे, वो अपने घर में बैठे रहे, हजरत फातिमा बाहर निकली, ऐसा कैसे हो सकता है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कोई इंतकाम नहीं लिया। तुम हजरत अली की जो तौहीन करते हो, तुम उनको खौफजदा और नाउज़ुबिल्लाह डरपोक साबित करते हो। तुम कहते हो कि हम अहले बैत से प्यार करते हैं। हमें आपका अहले बैत से प्यार बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। ये उन लोगों को बताना कि जो तुम्हारी हैसियत, हकीकत और असलियत को जानते ना हो। आगे ये साहब कह रहे हैं जनाब, इन्होंने अभी नाम नहीं लिखा, इन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह शिया होने पर फ़ख्र करता हूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद का मानने वाला हूँ। मौलाना तारीख़ को ज़रा गौर से पढ़ें, राफ़िज़ी हम हैं या वो जिसको तुम मानते हो। ठीक है जी, तारीख़ को क्यों पढ़ें, कुरान को क्यों ना पढ़ें। कुरान और अहले बैत, कुरान और अहले बैत, कुरान और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत, इसको पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि मुसलमान कौन है और इस्लाम से और अहले बैत से दूर कौन है। कुरान और अहले बैत, और मैं तुम्हें हदीस और सुन्नत पढ़ने का कहूँगा, मैं तुम्हें तारीख़ पढ़ने का नहीं कहूँगा, अखबारें पढ़ने की हम तरगीब नहीं देते। हम आपको कुरान, अहले बैत और सहाबा और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलने का कहेंगे। आप चलो तो आपको पता चलेगा कि दीन क्या होता है, इस्लाम क्या होता है। वरना यही तारीख़ और ये झूठी सच्ची कहानियों में लगे रहोगे तो कुछ भी नहीं पा सकोगे, सारा का सारा झूठ और फरेब ही पढ़ते रहोगे। अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी, अरे मौलवी तुम लोग कुरान करीम को मानते ही नहीं, अगर मानते हो तो आयत वुज़ू की तशरीह करें। आयत वुज़ू की तशरीह मुझसे करवा रहे हो जनाब, पहले अपना इस कुरान पे ईमान तो साबित करो। तुम इस कुरान को मानते ही नहीं, मेरे सामने आयत रख रहे हो कि इसकी तशरीह करो। तुम कहो कि हम इस कुरान को सच्चा मानते हैं। जिन लोगों ने कहा कि इस कुरान में तारीफ हुई है, जिन लोगों ने कहा कि असली कुरान नहीं है, हम उन पर लानत भेजते हैं, हम उनको मुसलमान नहीं समझते, कहो तो फिर तुम्हें तो हर चीज़ की तशरीह करके, एक एक आयत की तशरीह करके तुम्हें जनाब मैं बताऊँगा और ज़रूर बताऊँगा। ये कोई साइलेंट लाइफ नामी कोई हजरत है, इन्होंने अपना कोई फेक सा नाम भी सही तरह रख लो, कम से कम फेक चैनल बना के उससे आप कमेंट्स कर रहे हो। आगे काजी हबीबुल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि गुलाम हुसैन नजफी जहन्नमी क्या क्या बकवासात लिखे हैं वो देखें, क्या वो मुसलमान था। बेशक ये जो इनका गुलाम हुसैन नजफी है, हज़रात सहाबा इकराम हो या कुरान करीम हो या अहले बैत अतहार हो या रब्बुल आलमीन की ज़ात हो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात हो, उस पर ऐसे इस तरह के घटिया अल्फाज और जुमले लिखे हैं कि यकीन माने कोई इंसान पढ़ता है तो अगर वो मुसलमान न भी हो, कि एक इंसान के लिए भी अगर वो बातें कही जाएं, अगर वो इस गुलाम हुसैन नजफी की बातें पढ़ ले तो इंसान की रूह काम बजाए कि कोई इंसान इतना भी गिर सकता है कि वो इस्लाम, दीन, शरीयत, सहाबा और अहले बैत और अल्लाह के रसूल के लिए ऐसी बातें लिखेगा। तो इस तरह के तुम्हारे लोग हैं, इस तरह के तुम्हारे मजहब और अकीदा है जिसमें गालियां देना सवाब है, और तुम हमें बता रहे हो कि हम अहले बैत से मोहब्बत बड़ी करते हैं। अच्छा, काजी हबीबुल्लाह साहब आगे कहते हैं कि अगर कोई शिया तारीफ कुरान का कायल नहीं है तो मुल्ला बाकिर मजलिसी, शेख सदूक वगैरह हम पर लानत, इन तमाम पर आप लोग लानत भेज दें, ये सब अहले तशरीह तकिया से काम लेते हैं। बेशक ऐसा ही है, ऐसा ही है। इन लोगों ने कुरान करीम के तारीफ के भी कायल है और ये कहते हैं इमाम सारा ज़िंदगी झूठ बोलते रहे, तकिया करते रहे और इसी तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और बस वो चले गए। तो अगर वो तकिया में ज़िंदगी गुजारी तो इसका मतलब है उन्होंने तो दीन का जो हक अदा करना था, दीन को पहुँचाना था, वो तो ना पहुँचा ना सके। जब ना पहुँचा सके तो फिर वो इमाम तो ना हुए ना, वो तो फिर दो चार बंदों के लिए, अगर उन्होंने दो चार के सामने सच बोला सिर्फ अपने लोगों के सामने और बाकियों के सामने वो झूठ से काम लेते रहे, तो फिर इनको मेरे ख्याल में इमाम कहना तो बनता ही नहीं है। महदवी साहब कहते हैं कि हम इन तमाम सहाबा इकराम की ताज़ीम करते हैं जो सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते थे और उनको दिलो जान से मानते हैं, और इन तमाम सहाबा नुमा पर लानत नौज़ुबिल्लाह जिन्होंने रसूलुल्लाह की बेटी ज़हरा अलैहिस्सलाम के घर को आग लगा के उनको अजियत दी। यही मैंने कहा था ना कि आगे कमेंट्स आ रहा है इस बंदे का। मेहदी साहब, मैं ज़रा आपके कानों की खिड़कियाँ खोलता हूँ। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बेटी के घर का दरवाज़ा तोड़ा गया तो कहाँ थे सैयदना अली मुर्तज़ा, कहाँ थे शेर खुदा, कहाँ थे असदुल्लाह। जनाब ये हज़रत अली की तौहीन कर रहे हो तुम। तेरी बीवी का दरवाज़ा आके तोड़ा जाए,
उसको लाते मारी जाएं, उसका पेट में हमल हो, वो ज़ाया किया जाए, घर को आग लगाई जाए, और तू घर के कोने में घुस जाए तो लोग तुझे डरपोक कहेंगे, बुज़दिल कहेंगे, और लोग तुझे कहेंगे ये बेवकूफ़ इंसान, बुज़दिल इंसान है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पूरी तारीख़ इस्लाम में, हदीस में, कुतब में बता दे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मौके पर क्या किया। आगे चलकर उनकी खिलाफत तस्लीम कर ली, उनके हाथों पर बैयत कर ली, और जनाब आगे ये सारे उनके साथ मिलकर काम करते रहे। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने किया। यही तो तुम लोग हो शिया राफजी, इसलिए तो हम कहते हैं कि आले बैत अतहार की तुम गुस्ताख हो, और ये गुस्ताखियाँ तुमने रकीक किस्म के हमले किए हैं। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के बहादुरी, जुर्रत, शुजात पर तुम्हारा कितना बड़ा हमला है कि हज़रत उमर ने आकर हमला किया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला बोला ही नहीं, और आज तुझे गैरत आ रही है, आज तुझे जनाब आग लगी हुई है। जब हज़रत अली के सामने हुजूर की बेटी पर हमला हो रहा था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने क्यों कुछ नहीं किया? अगर ये सच होता, ये तुम्हारी कहानियाँ होती तो हज़रत अली ने कुछ किया होता, तो ये तुम्हारी कहानियां ये बता रही हैं कि हज़रत अली ने अगर कुछ नहीं किया तो ऐसा वाकई कुछ नहीं हुआ। ये कहानियां और ये झूठा मजहब सबाइयत ये अपने पास रखो, ये किसी ऐसे के सामने पेश ना करो कि जिसने दो चार लफ्ज़ पढ़े हों वो फौरन तुम्हारे झूठ और सच को पहचान लेगा। अच्छा, एक साहब कह रहे हैं जी आप लोग बंद कमरे में बैठकर जो बोलते हैं हसन अल अय्यारी से, आप लोग वाक़ई इसके सामने एक दलील पेश नहीं कर सकते, वो तो आवाम को हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। हसन अल अय्यारी आपका हो या कोई भी हो, जब वो हमारे सामने आते हैं, जब किसी ऐसे शख्स के सामने आते हैं जो शिया मज़हब की हकीकत को जानता है, तो वो ऐसे दुम दबा के भागते हैं। आप पता करें ज़रा 5 दफ़ा वो कैसे दुम दबा के भागा है, और आज तक लोग उस हमारे तहरीफ कुरान वाले मुनाजरे पर लोग वीडियो बना रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं, और ख़ुद आपके शिया आलिम आगा अली रूहानी साहब ने उन्होंने कहा है कि हसन अल अय्यारी राफजी वो किस तरह दुम दबा के भागा है और वो जवाबात नहीं दे सका। ये तो आपके शिया आलिम जो है उन्होंने भी इसका एतराफ़ किया है। आगे हमारे एक भाई ने कहा जी काफिर शिया कायनात का बदतरीन और गलीज़ तरीन काफिर है। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, इसमें कोई शक और शुबे की बात ही नहीं है। जो कुरान में शक करता है, कुरान में तारीफ का कायल है, इस कुरान को असली कुरान नहीं मानता, सहाबा इकराम की मुकद्दस हस्तियों पर, अहले बैत अतहार की मुकद्दस हस्तियों पर रकीक हमले करता है और कहता है कि एक दफ़ा मुता करो तो हज़रत हसन, 2 दफ़ा करो तो हुसैन, 3 दफ़ा करो तो हज़रत अली, 4 दफ़ा करो तो नबी के दर्जे पर बंदा पहुंचता है। अहले बैत अतहार के साथ ये जुल्म और ज़्यादती नहीं है, ये उनकी शान में गुस्ताखी नहीं है कि तुमने ज़िना के रुतबे हज़रत अली और हज़रत हुसैन के बराबर कर दिए हैं। तो ये कितना बड़ा गलत अकीदा है और ये किसी मुसलमान का नहीं हो सकता। अहले बैत की सरासर गुस्ताखी और ये गलत है। आगे हमारे एक भाई कह रहे हैं, जमील खान साहब कह रहे हैं माशाल्लाह दिल जीत लिया आपने, जिस आज आप जैसे लोगों की आज बहुत ज़रूरत है। राफजियत जो है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बेशक इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप हमारे दस्ते बाजू बनेंगे और आप हमारी इस आवाज़ को मज़ीद आगे पहुँचाएंगे लोगों तक, और हम इंशाअल्लाह इन राफजियों की कमर तोड़ेंगे। और पहले से भी इन राफजियों के पास कुछ भी नहीं है, यकीन जाने इनको इतना कह दें अपना ईमान साबित करो, ये नहीं कर सकते। कोई शिया मर्द का बच्चा है कुरान पर अपना ईमान साबित करे, अहले बैत अतहार को मानता है, ये बात बड़ी करते हैं हम अहले बैत अतहार को मानते हैं। मेरा चैलेंज है, अहले बैत अतहार पर अपना ईमान साबित करो, उनकी ताबेदारी पैरवी तुम करते हो या नहीं करते, साबित करके दिखाओ कि अहले बैत अतहार के कितने ताबेदार हो तुम, उनकी बातों पर अमल करते हो, जिस रास्ते पर अहले बैत चले हैं क्या तुम चलते हो। तो ये राफजी नहीं बता सकते, इनमें इतना दमखमी नहीं है। तो बाकी आपके तबसरे का बहुत शुक्रिया। आगे एक जनाब कह रहे हैं जी, मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं कि मुफ्ती फजल हमदर्द और मोहम्मद यासीन को सुने तो पता चलेगा कि तुम जैसे नासबी का शुमार किस तबके में होता है। ये फजल हमदर्द हो गया, यासीन कादरी हो गया, ये कब से सुन्नी हो गए, ये तो हैं ही राफजी हैं, और ये ऐसा झूठ बोलते हैं, इस अंदाज में झूठ बोलते हैं कि दिन को ये कहेंगे कि ये रात है। और वो कह रहा है कि जनाब अभी अभी जो आखिरी वीडियो उसने तुम्हारे ये फजल हमदर्द राफजी, ये तो शहनशाह नकवी और ये साजिद नकवी का ये मुश्तरका बेटा है, उनका बच्चा है ये। तो उसने कहा कि हज़रत अबू बकर को सिद्दीक कहीं पे नहीं कहा, हमने हदीस से साबित किया। उसने कहा कि कोई हदीस है ही नहीं अहले सुन्नत के पास। हमने साबित किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने अपने ज़ुबान मुबारक से कहा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो बहुत पहाड़ पर चढ़े, पहाड़ हिलने लगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे पता है तेरे ऊपर कौन है? फरमाया कि एक अल्लाह के नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद है। 2 शहीद हज़रत उमर और उस्मान थे, सिद्दीक हज़रत अबू बकर थे, और नबी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम थे। और फिर हुजूर अलैहि सलाम जब मेराज के मौके पर गए थे तो वापस आए थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की थी मेराज की, जब कोई नहीं मान रहा था तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल्लाह इन्नल्लाह सम्मा का सिद्दीक, सिर्फ दुनिया में तुझे सिद्दीक नहीं कहा जा रहा, अल्लाह ने भी तेरा नाम सिद्दीक कहा, और जिसे अल्लाह सिद्दीक कहे तो वो सिद्दीक अकबर है। अल्लाह का हर जुमला अकबर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अकबर है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुमला कह दिया, सिद्दीक कह दिया, तो उससे बड़ा कोई सिद्दीक नहीं, वो सिद्दीक अकबर है। अच्छा जी, आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे कौन चलता है, इसका पोल खोल गया था कि जब अबू बकर सिद्दीक ने सय्यदन निसाउल आलमीन को फदक वापस नहीं किया था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फदक दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग़ फदक हज़रत फातिमा को ट्रांसफ़र नहीं किया, नहीं दिया, और कैसे देते? और भाई ये बाग़ फदक यहूदियों की मलकियत था, यहूदियों ने इस्लाम को, मुसलमानों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, ये माल फ़े था। और माल फ़े का तसर्रुफ़ क्या है? कुरान तुम लोग मानते ही नहीं, असल में तो कुरान पर तुम्हारा अकीदा होता तो ये बातें बड़ी वाज़ेह थी। कुरान के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी बाग़ फदक या माल फ़े के बारे में फरमा रहे हैं, मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फ़लिल्लाहि वलिर रसूलि वलिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वबिन सबील। अब बताएं कि 6-7 किस्म के लोग इस माल फ़े और बाग़ फदक में शामिल हैं, और अल्लाह
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उठा के हज़रत फातिमा को दे देते तो उन 6 लोगों का हक गस्ब ना होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से आप लोग ये सोच रखते हैं कि क्या वो किसी का नाउज़ुबिल्लाह हक मारेंगे और अपनी बेटी को सारा उठा के दे देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये माल फे अपनी बेटी को सिर्फ नहीं दिया, तो फिर यही काम हज़रत अबू बकर ने भी किया। तो अहले सुन्नत नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलने वाले हैं, और फिर यही काम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने भी किया। अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला समझते कि ये गलत हज़रत अबू बकर ने किया है और रसूलुल्लाह ने उनको बाग फदक दे दिया था, तो हज़रत अली आगे चलकर वो बाग अपने बेटों में तकसीम कर देते, क्योंकि वो उनका हक बनता था। लेकिन हज़रत अली ने नहीं किया, तो इस बात पर मोहर लगा दी कि जो काम अबू बकर ने किया था वही काम दुरुस्त था। पूछा गया हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, तो उन्होंने भी कहा कि जो फैसला अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने किया, मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं भी वही फैसला करता। जरा अकल को हाथ मार लिया करो। इसी को सुन्नियत कहते हैं कि जो काम नबी ने किया वो सुन्नत है, वही सहाबा भी करते चले जा रहे हैं, वही अबू बकर ने भी किया, वही अली ने भी किया। वो हज़रत हसन की खिलाफत आई, हज़रत हसन ने भी वो बाग फदक वापस नहीं लिया। इससे साबित ये होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा बिला फस्ल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का फैसला 100% अपनी जगह पे दुरुस्त था और अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक था। अच्छा जी, बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं उनमें से चंद आपके सामने रखे हैं। टाइम भी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं करते। एक हमारे भाई गुलाम कादिर कह रहे हैं, वाह साहबा वाह वाह अहले बैत वाह खिलाफत राशिदा, माशाल्लाह मौलाना साहब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सलामत रखें। बहुत ही ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू फरमाई है और दुआ दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। जनाब गुलाम कादिर साहब, आपने हमें अपनी दुआओं में याद रखा। अब बेशुमार और भी कमेंट्स हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कमेंट्स पढ़ने वाला सिलसिला हम जारी रखेंगे। ये एक भाई ने कहा जी मौलाना साहब आपका नंबर चाहिए, आपकी वीडियोस एक और चैनल पर चलाना चाहते हैं हम। बेशक ही आप हमारी हर एक को इजाज़त है हमारी वीडियो उठाए और अपना जो तबसरा करना चाहता है वो करे और उसके साथ हमारी वीडियो डाले और लगाए। कोई कॉपी राइट, कोई स्ट्राइक, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। ये हमारी वीडियो चूँकि हक़ को वाज़े करने के लिए, अहकाक़ हक़ के लिए है, दावत के लिए है कि रवाफ़िज़ कुरान से दूर, अहले बैत से दूर, सहाबा से दूर, इस्लाम से दूर, वो इस्लाम के करीब आ जाएं। तो इसके लिए हर एक को इजाज़त है कि वो हमारी वीडियो को उठा के कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता है दावत हक़ के लिए। एक ने कहा जी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बकरी जो आधा कुरान खा गई थी उस पर क्या कहोगे? तुम्हारी सही बुखारी तो फिर गलत बुखारी हो गई। सहाबा इकराम, अगर एक चीज़ बहुत सारे लोगों के पास जमा है, उसमें से एक के पास ज़ाया हो जाती है, तो ये तो लाजिम नहीं आता कि बाकियों के पास से वो ज़ाया हो गई और कुरान पूरा मुकम्मल कामिल नहीं है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बकरी अगर वो खा भी गई तुम्हारे शियों के अकीदे के मुताबिक, तो उसके बावजूद भी दीगर सहाबा के दिलों में कुरान महफूज था, सहाबा उफ़ाज़ थे, दीगर सहाबा ने लिखा हुआ था, कातिबीन वही के पास वो चीज़ जमा थी। तो लिहाजा जब कुरान जमा किया गया तो सबसे लेकर जमा किया गया, तो कोई उसमें कमी और पेशी नहीं रही। ये तुम्हारा प्रोपेगेंडा ये बेनकाब हो चुका है, अब ये मजीद आगे चलने वाला नहीं है। झूठ कितना बोलोगे अपने मजहब और शीयत को सच्चा साबित करने के लिए, लेकिन तुम कुरान और अहले बैत पर अपना ईमान नहीं साबित कर सकते। तो आज का ये आखिरी कमेंट था और बहुत सारे कमेंट्स है यहाँ पे, 150-200 कमेंट्स है, वो सारा तो शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन आइंदा जिसका इल्मी कमेंट होगा, दलील की बुनियाद पे होगा, जितना सख्त इख्तिलाफ हो मसला नहीं है, लेकिन इल्मी होगा, दलील की बुनियाद पे होगा, तो वो कमेंट्स इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।